ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتما بدھ کو ایشور کے اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو ایشور کے اوتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپ میں پوجا بھی گیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتما بدھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی، کیونکہ بدھ دھرم ہندوستان سے نکل کر پورے مشرق بعید میں پھیل گیا تھا۔ مہاتما بدھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، خدا کو ایک مانتے اور نجات آخروی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راکھ کی پوجا نہ کی جائے، مگر یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجا انہی کی ہوتی ہے۔ پٹنہ شہر کے قریب قدیم الایام ٹیلوں کی کھدائی سے، جہاں کسی زمانے میں پاٹلی پتر کا عظیم و شان بدھ شہر آباد تھا، جو نادر اشیاء دستیاب ہوئیں۔ ان میں پیتل کی بدھ مورتی بھی شامل ہے، جس پر پالی زبان کے 4 پر اسرار شبد اور بدھ کے 4 ہی نام کندہ ہیں، جنہیں قدیم زبان کے ماہرین نے حال ہی میں پڑھ لیا ہے۔ یہ ہیں وہ شبد اور نام: جیون، بھید، 4 انائے، تتھاگت، شاکیہ منی، امیتابھ، آتما روپی۔ آرٹیکل میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ جو کتبے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مورتی بدھ کے خاص شاگرد آنند بخشو نے کوشی نگر کے ایک کاریگر سے بنوائی تھی، جو سار گلیان نامی ارہت نے قریباً 2 صدیوں کے بعد مہاراجا کو بھیٹ کی تھی۔ آنند بخشو کے نام اور پالی زبان کے پر اسرار الفاظ کے انکشاف پر بدھوں نے مورتی میں شدید دلچسپی لینا شروع کر دی۔ قریباً 2000 سال کے بعد اس کے حصول کی زبردست کشمکش کا پھر آغاز ہوا۔ کئی بدھ حکومتوں نے کمپنی سرکار کو پیشکش کی کہ اگر مورتی انہیں فروخت کر دی جائے تو وہ کمپنی کی احسان مند ہوں گی۔ ان دنوں لارڈ ہارڈنگ ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے مورتی قیمتاً فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ بدھوں کی حیرت انگیز دلچسپی اور فرمائش پر فورٹ ولیم، کلکتہ کے عجائب گھر میں اس کی نمائش کا بندوبست ضرور کر دیا تاکہ بدھ کے شہدائی مورتی کے درشن کر سکیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ 19ویں صدی عیسوی میں بدھ دھرم دنیا کا سب سے بڑا مذہب تھا۔ 1 مارچ 1847 کو مورتی کی پہلی نمائش کا اعلان ہوتے ہی کئی ملکوں کے بدھ یاتری جوک در جوک کلکتہ پہنچ گئے۔ ان میں ہندوستان کے شمالی علاقوں کے علاوہ برما، ہند چینی، سیام، تبت، نیپال، بھوٹان، لنکا، فلپائن، جاپان اور چین کے ہزاروں یاتری اور بھکشو بھی شامل تھے۔ 1 مارچ کو کلکتہ میں اس قدر ہجوم اور جوش و خروش دیکھنے میں آیا کہ مورتی کی حفاظت کا خصوصی انتظام کرنا پڑا، کیونکہ اس نمائش نے ایک بدھ تہوار کی شکل اختیار کر لی اور یاتری اسے چھونے کے لیے بے چین تھے، جبکہ مورتی شیشے کے ایک شو کیس میں رکھ دی گئی اور اسے صرف دور ہی سے دیکھنے کی اجازت تھی۔ بدھ یاتریوں کے اس غیر معمولی جوش و خروش کی وجہ سے لارڈ ہارڈنگ کو خیال آیا کہ کیوں نہ مورتی کو بدھ ملکوں کے درمیان خیر سگالی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ان ایام میں کمپنی سرکار تبت، نیپال اور برما کے سیاسی معاملات میں خاصی دلچسپی لے رہی تھی اور گورنر جنرل ان ملکوں میں بھی کمپنی کے لیے تجارتی اور سیاسی مراعات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انگریز برما کو اپنے حلقہ اثر میں لانے کے لیے بے چین تھے تاکہ ہندوستان پر ان کا راج کچھ اور مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ کمپنی کے خفیہ ریکارڈ سے، جسے 1857 کے پرآشوب واقعات کے بعد ملکہ وکٹوریہ کی برٹش گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا، لارڈ ہارڈنگ کے اس فیصلے کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جسے انگریز غزر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہندوستان کو برٹش امپائر میں شامل کر دیا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 1 مارچ 1847 کی پہلی نمائش پر تبت کے ایک بھکشو نے رات کے وقت فورٹ ولیم کے عجائب گھر میں گھس کر مورتی چرانے کی کوشش بھی کی، مگر گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے پولیس کو ایک عجیب و غریب بیان دیا کہ پٹنہ کے پرانے کھنڈروں سے مورتی کا دستیاب ہونا ایک جھوٹا افسانہ ہے، کیونکہ پاٹلی پتر کی تباہی کے کئی 100 برس بعد تبت کا ایک لاما ناتھ بنڈو یہ مورتی لہاسا سے لے کر گیا
की यात्रा करने हिंदुस्तान आया था और वापस ना जा सका। उसके साथ मूर्ति भी यही रह गई, ना जाने किस तरह अंग्रेजों के हाथ लग गई। उसका ख्याल था कि यह वही मूर्ति है जो अनाथ बिंडू तिब्बत से लाया था, इसलिए मूर्ति तिब्बत के मजहबी पेशवा दलाई लामा को वापस कर देनी चाहिए ताकि उसे लहासा की बुद्ध खानकाह में रख दिया जा। तिब्बती बख्शू के इस बयान पर बुद्धों में जबरदस्त सनसनी फैल गई और मूर्ति को तिब्बत पहुंचाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। मगर कंपनी सरकार ने बुद्ध पुरोहितों और ज्ञानियों को वो तारीखी कुतबे दिखाए जो मूर्ति के साथ दस्तयाब हुए थे और उन्हें तस्दीक करना पड़ी कि यह मूर्ति वाकई आसार कदीमा की खुदाई से दस्तयाब हुई। नाथ बिंडो वाली मूर्ति का इससे कोई तलक नहीं। इस पर गिरफ्तार किए जाने वाले बख्शू को छोड़ दिया गया कि वो गलत फहमी की बिना पर चोरी का अर्तकाब करने वाला था। मगर तिब्बत के कई लामे इस इंकशाफ पर दंग रह गए कि आनंद बख्शू वाली असल मूर्ति पाटलिपुत्र के खंडों से बरामद हुई है। हालांकि वो इस मूर्ति को असली समझते रहे जो सदियों लिहासा की बुद्ध खानकाह में महफूज रही और जिसको छू लेने से न जाने कितने रोगी तंदुरुस्त हो चुके थे। अगर अनाथ बिंडू वो मूर्ति अपने साथ हिंदुस्तान ना ले जाता तो उसकी मुजज नमाई से आज भी रोगी अच्छे हो सकते थे। मगर ये भेद कोई भी ना जान सका कि अनाथ बिंडू ने वो मूर्ति कहाँ खोई, कहाँ छुपाई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने मूर्ति के जरिए बुद्ध मुल्कों के साथ मेल मिलाप का जो प्रोग्राम बनाया था उस पर अमल ना कर सका, क्योंकि उसी साल हार्डिंग को लंदन वापस बुला लिया गया और उसकी जगह 1 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी नए गवर्नर जनरल की हैसियत में कलकत्ते पहुंच गया। 8 जनवरी को वो बाकायदा कौंसिल के अजलास में शरीक हुआ, जहां उसे मालूम हुआ कि 1 मार्च को कलकत्ता में बुद्ध मूर्ति का जो दूसरा सालाना त्यौहार मनाया जाने वाला है वो खतरनाक साबित होगा। खुफिया इतलात के मुताबिक बर्मा और तिब्बत के बुद्ध यात्री लाओ लश्कर समेत कलकत्ता आने वाले थे और इस अमकान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फोर्ट विलियम के अजायब घर पर धावा बोलकर मूर्ति ज़बरदस्ती उड़ा ले जाएंगे। सरकारी मुआवजों को मज़ाहमत पर हंगामा और फसाद का भी खतरा था। इस रिपोर्ट ने नए गवर्नर जनरल को चौंका दिया। 1848 में कंपनी सरकार कई खतरों से दो चार थी। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की वफात पर लाहौर दरबार साजिशों का मरकज बन गया और लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में ही कंपनी ने पंजाब में दखल अंदाजी शुरू कर दी थी। सन 19 लॉरेंस को, जिसका भाई जॉन लॉरेंस बाद अज़ां हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल भी मुकर्रर हुआ, लाहौर में कंपनी का रेजिडेंट मुकर्रर कर दिया गया, जिस पर सिख अंग्रेज़ के खिलाफ सख्त मुश्तिल हो रहे थे। दूसरी जन्म मरहटों से जंग जारी थी और उनके अलावा पिंड आरे भी हिंदुस्तान की लौट में अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। कंपनी सरकार की देसी फौजों में बददिली के आसार पाए जाते थे। अब कलकत्ता में बुद्ध या यात्रियों के हंगामों का खतरा उमड़ते देखा तो लॉर्ड डलहौजी ने फौरी तौर पर मूर्ति का त्यौहार मनसूख कर दिया। वो खुद पंजाब के मैदानों में सिखों के साथ हंगामा आराई की तैयारियां कर रहा था। मगर त्यौहार की मनसूखी का ऐलान उस वक़्त किया गया जब बुद्ध बख्शुओं के काफिले मुख्तलिफ इलाकों से कलकत्ता की सिमत रवाना हो चुके थे। उन्हें बंगाल और असम की सरहदों पर रोकने की कोशिश की गई, जिस पर तिब्बत के लामाओं और शाह आवा बर्मा ने कंपनी सरकार से सख्त एहतजाज किया और त्यौहार की मनसूखी का ऐलान बहुत देर से किया गया है, इसलिए बुद्ध यात्रियों को मूर्ति के दर्शन करने की इजाज़त दी जाए। त्यौहार में अभी चंद रोज़ बाकी थे। कंपनी सरकार शाह आवा पर खास तवज्जो दे रही थी ताकि बर्मा में असर सोख हासिल कर सके। शाह की अपील पर बुद्ध यात्रियों को कलकत्ता आने की इजाज़त दे दी गई, मगर साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने खुफिया तौर पर वैसी एक नई मूर्ति तैयार कराने को हुक्म दिया जो नकल के मुताबिक असल हो। चुनाचा फोर्ट विलियम के म्यूजियम से असल मूर्ति कुतुबों समेत हटा ली गई और उसकी जगह नकली मूर्ति ने ले ली। 1 मार्च 1848 को कलकत्ता में मूर्ति की नुमाइश हुई। यात्रियों ने नकली मूर्ति के दर्शन किए और लौट गए, मगर नुमाइश की दूसरी रात बीक वक़्त 3 बख्शुओं ने फोर्ट विलियम में घुसकर मूर्ति चुराने का यत्न किया और गिरफ्तार हो गए। बाद में पता चला कि वह तीनों बख्शु बर्मा से आए थे। कोई मुकदमा चलाए बगैर तीनों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद भी मूर्ति को उड़ा ले जाने की मुतअद्दिद वारदातें हुई, मगर ना तो मूर्ति चलाई जा सकी, ना पुरअसरार अफराद गिरफ्तार हो सके। वह हैरत अंगेज तौर पर पहरेदारों को धोखा देकर निकल जाते।
वारदातों के इस तसलसल से घबरा कर न सिर्फ मूर्ति को त्यौहार हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, बल्कि नकली मूर्ति भी फोर्ट विलियम के म्यूज़ियम से हटा दी गई। लॉर्ड डलहौजी का ख्याल था कि असल मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम को भेज दी जाए, लेकिन उसे मशवरा दिया गया कि बुद्ध के मचारी लंदन भी पहुंच जाएंगे और दौलत इंग्लिशिया नई मुसीबत में मुब्तला हो जाएगी। लिहाजा उसने अपना ख्याल तर्क कर दिया और असल मूर्ति उस हिदायत के साथ शमाली हिंद के किसी शहर में भिजवा दी कि किसी भी जगह और किसी भी मौका पर इस मूर्ति की नुमाइश न की जाए। नकली मूर्ति का किस्सा भी बड़ा अजीब है। कंपनी सरकार ने बर्मा में असर और शौक बढ़ाने के लिए वो मूर्ति शाह आवा को भेंट कर दी, जिस पर खुश होकर शाह आवा ने बर्मा में अंग्रेज़ों की तिजारती और सियासी मराआत में इजाफा कर दिया। तारीखी शहादतों से ये बात साबित हो चुकी है कि मूर्ति भगवान बुद्ध की मुकद्दस राह की वजह से पुत्र और मकबूल थी, मगर जब बर्मा के दारुल हुकूमत में आवा में बुद्ध पुरोहितों ने मूर्ति को एक रोगी पर आजमा कर उसकी असलियत मालूम करना चाहिए, तो तीसरे दिन रोगी चल बसा, जिस पर पुरोहितों को शक हुआ कि मूर्ति नकली है। बाद अज़ा उसमें महात्मा बुद्ध की राख तलाश करने की कोशिश शुरू हुई, तो बजद नाकामी और कुछ हासिल ना हुआ, जिस पर मूर्ति को नकली करार देकर वापस कलकत्ता भेज दिया गया। नीज़ कंपनी सरकार पर बद एतमादी का इजहार भी किया गया। उसने नकली मूर्ति भेंट करके शाह आवा को धोखा दिया और बुद्धों के जज्बात घायल किए हैं। इसी बुनियाद पर सरकार और शाह आवा के तलकात खराब हो गए और बर्मा में कंपनी की बाद तजारती मराआत मनसूख कर दी गई, जिस पर अंग्रेज़ बर्मा में मदाखलत का मौका मिल गया। आखिर उसने बर्मा के खिलाफ जंग छेड़ दी और बर्मा पर भी उसी तरह कब्जा कर लिया जिस तरह हिंदुस्तान पर किया था। बाद अज़ा दोनों मुल्क एक इंतज़ामिया के तहत यकजा कर दिए गए, मगर अंग्रेज़ की तजारती और सियासी लूट खसूट मेरा मौजू नहीं। सवाल यह है कि असल मूर्ति जिसमें भगवान बुद्ध की राख महफूज थी और जिसे छू लेने के बाद रोगी सेहतयाब हो जाते थे, कलकत्ता से कहाँ भेज दी गई? यही वो अहम सवाल है जिसने बुद्ध पुरोहितों, बख्शुओं और ज्ञानियों को एक अरसे तक परेशान रखा, क्योंकि पिटना के टैलों से बरामद होने वाली मुकद्दस बुद्ध मूर्ति तारीखी कुतुबों और शहादतों के साथ फोर्ट विलियम के अजायब घर में रखी गई थी। मूर्ति समेत इन कुतुबों और शहादतों को बुद्ध ज्ञानियों ने बेचश्मे खुद देखा और तस्दीक की थी कि वही आनंद बख्शू वाली मूर्ति है जिसमें बुद्ध की मुकद्दस राख महफूज थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपने अहद हुकूमत में उसे किसी शहर में मुंतकिल कर दिया था। कोई बुद्ध ज्ञानी और बख्शू उसका सुराग न लगा सका, मगर वो लोग इस मुकद्दस मूर्ति की तलाश में दीवाना वर्ग सरगर्दा और परेशान रहे। यहाँ मुकद्दस मूर्ति का दूसरा बाब ख़त्म हो गया था। मैं चंद लम्हे इन अजीबोगरीब वाक़यात पर सोचता और हैरान होता रहा। ये बात हैरत अंगेज़ थी कि अंग्रेज़ उस ज़माने की बुद्ध हुकूमतों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कायम करना चाहता था, लेकिन कंपनी सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें धोखा भी दिया। आखिर शाह आवा को नकली मूर्ति भेंट करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर असली मूर्ति भूंड की होती तो बर्मा के साथ कंपनी सरकार की दोस्ती हो जाती। अचानक ज़हन में एक चिंगारी भड़की और ख्याल आया कि शायद कंपनी सरकार बर्मा से दोस्ती चाहती ही नहीं थी और शाह आवा को नकली मूर्ति इसलिए भेंट की गई कि वो मुश्तिल होकर कंपनी को दी जाने वाली तिजारती मराआत वापस ले ले और अंग्रेज़ को बर्मा में फ़ौजी मुदाखलत का बहाना मिल जाए। कंपनी बर्मा से दोस्ती की बजाय उस पर फौजी कब्जा करने के मंसूबे बांध रही थी। आखिर 1888 में अंग्रेज़ ने बर्मा पर फतेह पाई। ये दो वाक़यात हैं जो माजी में हो गुजरे। बरतानिया को हिंदुस्तान के साथ बर्मा पर भी हुक्मरानी का अख्तियार मिल गया। 18वीं और 19वीं सदी के एशियाई हुक्मरान ऐसे परिंदे थे जिनकी आंखों के सामने अंग्रेज़ शिकारी अपना जाल बिछाते और उसके जाल में फंस जाते थे। मगर मुझे गुजरे दिनों पर मातम करने की फुर्सत नहीं। मैं तो ये जानने के लिए बेचैन था कि भगवान की मूर्ति कहाँ भेज दी गई और आखिर चाचा चक्रवर्ती साहब ने उसे कहाँ से और किस तरह ढूंढ निकाला। बड़े शौक व अतराब के साथ मैंने किताब का तीसरा बाब खोला और उन सनसीखेज वाक़यात में खो गया जो चाचा ने तहरीर किए थे। उनके मुताबिक लॉर्ड डलहौजी ने 36 वर्ष की उम्र में एक अहम अहदा संभाला था। वो कंपनी सरकार का सबसे कम उम्र गवर्नर जनरल था। जवानी के जोश में उसके जज्बात फ़ौरन मुश्तिल हो जाते और वह अपने हरीफों को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाता। उसने एक तरफ किनारी की जंग के बाद जो जून 1848 को अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान लड़ी गई, दरबार लाहौर के खालसा सरदारों से साजबाज करके
रंजीत सिंह की बेवा महारानी जंदा को जलावतन कराया। फिर दूसरी जंग 1849 जीतकर कम सिंह महाराजा दलीप सिंह को भी 5 लाख रुपए सालाना पेंशन पर तख्तो तार से महरूम कर दिया और पंजाब को बाकायदा ब्रिटिश इंडिया का सूबा बना दिया। वरना लॉर्ड हार्डिंग के दौर में कंपनी सरकार की अमलदारी सिर्फ दरिया सतलुज तक थी। दूसरी जानब बर्मा में शाह आवा को नकली मूर्ति भेजकर तअल्लुकात खराब करने का मौका पैदा किया ताकि कंपनी सरकार की फौजें बर्मा पर भी धावा बोल सकें। रंगून के एक मशहूर बहाबुंद ने भगवान की मूर्ति गायब कर देने के वाक़े पर अपने विचार का इजहार इस तरह किया है कि अंग्रेज़ खुद तो उस सलीब आज़म के बारे में जिस पर उनके कहने के मुताबिक यसू मसीह को लटका दिया गया, ये अकीदा रखते हैं कि उसे छू लेने से बीमार और कोढ़ी शिफायाब हो जाते हैं। मगर जब उन्होंने बख्शू बुद्ध की मूर्ति के बारे में भी इसी किस्म की बातें सुनी, उनके मजहबी सियासत ये बर्दाश्त न कर सकी कि महाराजा शाकिया मनी बुद्ध में की करामत का चर्चा हो। वो तो हिंदुस्तान में असाइयत फैलाने की खातर सलीब की करामतों का प्रचार ज़रूरी समझते थे, इसीलिए उन्होंने मुकद्दस मूर्ति गायब कर दी। मगर हिंदुस्तान और बर्मा में अंग्रेज़ी कब्जे के बाद भी बुद्ध पुजारी उस मूर्ति की तलाश में सरगर्दा रहे। मलका विक्टोरिया के हद में जब कंपनी सरकार का राज खत्म करके हिंदुस्तान को बर्तमानवी वलायात का बाकायदा हिस्सा बना लिया गया और इंग्लिस्तान जाने की सहूलतें पैदा हो गईं। बुद्ध पुजारियों की खुफिया कॉन्फ्रेंस चीन के शहर मेकाओ में हुई, जिसमें मशरक़ बईद के बुद्ध देशियों के बड़े बड़े पुजारी शरीक हुए और मूर्ति की तलाश के लिए एक कमेटी कायम की गई, जिसे पहला काम ये सौंपा गया कि उसके दवार कान लंदन जाकर ये खोज लगाने की कोशिश करें कि मूर्ति कहीं खुफिया तौर पर लंदन तो नहीं भेज दी गई। मगर यह सफ़र नाकाम साबित हुआ। जो पुजारी इंग्लिस्तान गए उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अलावा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में भी कदीम मखतूतात नवारदात की छानबीन की। वहाँ महात्मा बुद्ध के बेशुमार मुजस्मे और बुद्ध दौर के कुतबे वगैरह मौजूद थे, लेकिन किसी भी ज़रिए से ये मालूम ना हो सका कि मतलूबा मूर्ति कभी लंदन भेजी गई थी। मिकाओ महब की नाकामी के बाद तिब्बती लामाओं ने उस वक़्त के दलाई लामा से दरख्वास्त की कि 1815 की खुदाई में पटना से दस्तयाब होने वाली मुकद्दस मूर्ति को अंग्रेज़ों ने यकीनन किसी खास मसलत के तहत गायब कर दिया है, लेकिन वैसी एक मूर्ति जो सदियों से लहासा की बुद्ध खानका में मौजूद थी और जिसे अनाथ बिंडू गया की यात्रा पर अपने साथ ले गया था, ज़रूर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ही होगी। हमें वो मूर्ति ढूंढनी चाहिए। दलाई लामा ने उसकी तजवीज़ के मुताबिक एक पार्टी हिंदुस्तान भेजी। नेपाल और लद्दाख के बुद्ध पुजारियों को संदेश रवाना किए कि वह मूर्ति की तलाश में पार्टी की मदद करें, मगर ये सारी कोशिशें बेसूद साबित हुईं। अनाथ बिंडू की यात्रा को तवील अरसा बीत चुका था और किसी को भी मालूम न था कि उस नाम की कोई तिब्बती लामा हिंदुस्तान आया था या नहीं। दलाई लामा की भेजी हुई पार्टी का ख्याल था कि भगवान बुद्ध की नादर और पुत्र मूर्ति की वजह से अनाथ बिंडू को हिंदुस्तान में कुछ शोहरत ज़रूर मिली होगी, मगर पार्टी को सख्त मायूसी हुई, क्योंकि गया, पटना, बनारस और इर्द गिर्द के किसी शहर में कोई भी इस तरह के इसके बारे में कुछ न जानता था। जैसे भगवान की वो मूर्ति जिसे छू लेने से रोगी अच्छे हो जाते थे, कभी हिंदुस्तान आई ही नहीं थी। तिब्बती लामाओं की पार्टी का नाकामो नामुराद लिहाजा लौट गई। उन्हें मूर्ति का कोई खोज ना मिल सका। ये ना मालूम हो सका कि अनाथ बिंडू के साथ कौन सा गैर मामूली वाक़या पेश आया था और मूर्ति कहाँ गई। बेहम तलाश और मुसलसल नाकामी के बाद ये महम तर्क कर दी गई, मगर बाद तिब्बती लामाओं ने ज़ाती तौर पर जुस्तजू जारी रखी। 1920 में एक लामा बद्री शाखा आसाम के सरहदी कबाइल में घूमता फिर ताया पानी पारा जा पहुंचा, जहां उसने 3 सदियां कबल गुची साओ के बुद्ध धर्म कबूल करने और अमानत बिंडू के स्वागत की खातर असम के दूर अफ्तादा पहाड़ों की तरफ जाने की कहानी सुनी। इस वाक़े के बाद गोची साओ का परिवार उन्हीं पहाड़ों पर जा बसा था। फिर एक दिन बद्री शाखा पार से होता हुआ दुश्वार गुजार पहाड़ी सफ़र तय करता अचानक साओगारी की पुरअसरार इमारत में दाखिल हुआ। साओगारी में उसकी मुलाकात साओ खानदान के वारस मंगल साओ से हुई, जो गोची साओ की वसीयत के मुताबिक उस इमारत में निर्वाण की तपस्या जारी रखने का पाबंद था। मैंने उस वक़्त तक मूर्ति के बारे में जो मालूमात दर्ज की हैं वो मुझे मुख्तलिफ ज़राए से हासिल हुई, जिनमें बाद किताबें और कुतबे भी शामिल हैं। कंपनी सरकार के अहद में पेश आने वाले वाक़यात तारीखों के अलावा बाद अहम दस्तीवाद से हासिल किए गए, जो इस रिसर्च के दौरान मैसर आईं।
मगर बद्री साखा और मंगल साव की मुलाकात का वाकया मुझे खुद बद्री साख ने सुनाया, जिससे मेरी मुलाकात ढाका में हुई थी। सच्ची बात है कि साखा से मिलने के बाद ही मुझ पर मुकद्दस मूर्ति की अहमियत वाज़ा हुई और मैंने उसके बारे में तहकीक का बेड़ा उठाया। सावगारी और साव खानदान की अजीबोगरीब दास्तान भी बद्री साखा ही ने मुझे सुनाई थी। इस वजाहत के बाद मैं मंगल साव से उसकी मुलाकात का हाल बयान करता हूँ। रत्नागिरी की दूर अफ्तादा लेकिन हसीन वादी में सावगारी की तामीर और वहाँ साव खानदान की नस्ल दर नस्ल रिहाइश यकीनन किसी अहम और पुरअसरार वाक़े के सबब थी। इसलिए बद्री साखा ने अपना मतलब ज़ाहिर करने में जल्दी नहीं की। उसने मंगल साव को बताया कि वो इन मकामात को देखने निकला है जिनसे अनाथ बिंडू 3 सदियों पहले गुजरा था। असम के इस पहाड़ी इलाके में अनाथ बिंडू की आमद अगरचे एक मशहूर वाक़े की हैसियत रखती थी, मगर लिहाजा में किसी को मालूम न था कि सफ़र हिंदुस्तान के दौरान उसने रत्नागिरी की वादी में क़याम किया था। इस सफ़र में सिर्फ 3 आदमी और 2 खच्चर उसके हमरा थे, मगर उसका कोई भी साथी वापस न पहुंच सका। चुनाचा जब मंगल साव ने उसे बताया कि नाथ बिंडू ने ना सिर्फ गया की तरफ जाते हुए रत्नागिरी में ठहरा, बल्कि वापसी में भी उसने यहीं क़याम किया और यहीं उसकी अचानक मौत वाक़ हुई थी, तो बद्री साखा को बड़ी हैरत हुई। ये इंकशाफ तो किसी अचंभे से कम न था कि रत्नागिरी के शिमाली बिन में इसकी समाधि मौजूद है और जंगल अनाथ बिन ही कहलाता है। चुनाचा मंगल साव ने उस शिमाली पर्वत के जंगल में अनाथ बिंडू की समाधि दिखाई। अब बद्री साखा को विश्वास हो गया था कि वह अपनी तलाश में ज़रूर कामयाब होगा। उसके अंदाजे के मुताबिक मूर्ति सावगारी में ही होनी चाहिए। उसने अनाथ बिंडू से गोची साव की अकीदत के बारे में बहुत सी बातें मालूम की, तो रात के वक्त अचानक मूर्ति का जिक्र छेड़ दिया। वो समझता था कि शायद मंगल सावलियत तो लाल या टाल मटोल से काम लेकर उस लिए ये वजाहत भी कर दी कि वो लिहाजा की बुद्ध खानका का नुमाइंदा बनकर आया है, ताकि उस मूर्ति को वापस ले जा सके जो अनाथ बिंडू अपने साथ ले गया था। मंगल साव ने किसी हिचकिचाहट के बगैर एतराफ़ कर लिया कि उसे अपने पुरखों की तरफ से जो रवायात वर्षे में मिली हैं, उनके मुताबिक बुद्ध की एक मूर्ति अनाथ बिंडू के पास मौजूद थी, जिसे छू लेने से रोगी अच्छे हो जाते थे। साव खानदान के बानी गोची साव के सामने एक रोगी ने मूर्ति को हाथ लगाया और वो तंदुरुस्त हो गया। यह हैरत अंगेज करिश्मा देखकर बुद्ध धर्म पर गोची साव का विश्वास बढ़ गया और उसने अनाथ बिंडू से विनती की कि गई की यात्रा से वापसी तक मूर्ति उसे दे दी जाए, क्योंकि वह शाम के सरहदी कबीलों में जो हिंदुओं की तरह अजीबो गरीब अकीदे रखते हैं, भगवान बुद्ध की सच्चाई का प्रचार करना चाहता है। अनाथ बिंडू ने मूर्ति उसके हवाले कर दी और रत्नागिरी की वादी में सावगारी का संगे बुनियाद रखकर सूबा बहार की तरफ चला गया। वो लंबी मुद्दत के बाद यात्रा से लौटा। उस वक्त सावगारी की आधी इमारत तैयार हो चुकी थी। उसने बरसात का मौसम यहीं गुजारने का फैसला किया, लेकिन एक रात अचानक शदीद बीमार हुआ और दूसरे दिन चल बसा। आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी समाधि शिमाली पर्वत के जंगल में बना दी गई। अनाथ बिंडू के स्वर्गवास होने की यह कहानी सुनकर बद्री साख ने पूछा, इन 3 बख्शियों का क्या हुआ जो अनाथ बिंडू को साथ आए थे? मंगल साव ने बताया कि गया की यात्रा से वापसी पर उसके साथ सिर्फ 2 बख्शू थे। तीसरा सफ़र के दौरान मर गया। अनाथ बिंडू के स्वर्गवास हो जाने के बाद दोनों बख्शुओं ने सावगारी में ही क़याम करने की ठान ली। वो यहीं रहे हैं और यहीं मरे और आग उनके जिस्मों को खा गई। फिर तो मूर्ति भी यहीं होगी। मंगल साव कहने लगे कि मूर्ति अनाथ बिंडू की अमानत थी और कुछ अरसे के बाद उसके पास पहुंच गई। ये बात बद्री साख की समझ में ना आ सकी। वो सोचने लगा, शायद मंगल साव मूर्ति को लौटाना नहीं चाहता, मगर साव खानदान के वारिस ने बताया गोची साव अपनी ज़िंदगी में ही मूर्ति खो बैठा और मरते दम तक परेशान रहा। सावगारी की इमारत मुकम्मल हो जाने के बाद उसके जीवन का एक ही मकसद था कि बुद्ध धर्म का प्रचार करे। उसने सावगारी में निर्वाण की तपस्या जारी की, खुद नगर नगर घूमने और सत्य का प्रचार करने लगा। एक दिन वह बख्शुओं को साथ पूर्वी असम के कबाइल की तरफ जा रहा था, जो बुद्धा की मूर्ति को चंद रोगियों पर आजमाना चाहते थे कि सीखुआ घाट पर बरहम पुत्र नदी पार करते हुए नाव उलट गई। गोची साव और बख्शू तेज रफ्तार लहरों में गोते खाने लगे। मांझियों ने बड़ी मुश्किल से नाव को सीधा किया और उन्हें डूबने से बचाया, मगर इस हादसे में सामान के साथ मुकद्दस मूर्ति भी दरिया की भेंट हो गई। गोची साव को मूर्ति खो जाने का बड़ा दुख था। तलाश के लिए उसने सीखवा घाट पर डेरा डाल दिया और मांझियों के अलावा गोताखोरों और माहीगिरों को बुलाकर
नदी से मूर्ति खोजने की मुहिम शुरू की। सीखवा घाट पर ब्रह्मपुत्र का पाट बड़ा चौड़ा है और उसे आशा थी कि मूर्ति मिल जाएगी। माहीगीरों ने कश्तियों के जरिए जाल डाले। मांझी और गोताखोरों ने नदी को दूर दूर तक खंगाल डाला। गोची साव हर रोज इनाम की रकम में इजाफा करता चला गया। इनाम की रकम 10,000 रुपये तक पहुंच गई। ब्रह्मपुत्र में सीनवा घाट से लेकर डबरूगढ़ तक जाल डाले गए, गोते लगाए गए। गोताखोर नदी की तह से रोड़े कंकर तक निकाल लाए, मगर जिस गोहरे मकसूद की तलाश थी वो हाथ ना आया। गोची साव ने अपनी आधी जागीर उस किसान के परिवार को दान कर दी थी जो अपनी बेटी के साथ उसकी हवस का शिकार हुआ। फिर भी बाटीपारा में वह सबसे बड़ा जिम्मेदार और अमीर आदमी था। उसने पूरा 1 महीना मूर्ति की तलाश में सिर्फ कर दिया। पानी की तरह रुपया बहाया। मूर्ति ढूंढ कर लाने वाले को बड़े से बड़ा इनाम देने का ऐलान किया। डबरूगढ़ तक दरिया उलट पलट कर दिया गया, मगर कुछ हासिल ना हो सका। आखिर गोताखोरों ने उसे यह कहकर बिल्कुल मायूस कर दिया कि मूर्ति या तो किसी मगरमच्छ ने निगल ली है, या बाटीपुरा के साथ ही नीचे बहती ना जाने कहां पहुंच गई। हो सकता है कि खलीजे बंगाल में जा गिरी हो। यह जवाब सुनकर गोची साव पागल हो गया। उसने कहा कि वह बख्शियों की मुकद्दस मूर्ति को दोबारा हासिल करने के लिए अपनी सारी पूरी जागीर खर्च कर देगा, और तलाश बेसुध में मसरूफ रहा। माहीगीर, मांझी, गोताखोर 2.5-3 माह तक मूर्ति को ढूंढते रहे। जूं वक्त गुजर रहा था, गोची साव की हालत गैर होती जा रही थी। आखिर हजारों रुपए बर्बाद कर देने के बाद वो एक दिन नाकामो नामराद मातम करता हुआ सावगारी लौट आया और चीख कर रोता रहा। और उसके घर वालों, नौकरों और उनके बख्शियों ने, जो उसके साथ ही सावगारी में आबाद हो गए थे, उसका दुख बांटने और ध्यान किसी और तरफ लगाने की बड़ी जतन किए। मगर मालूम होता था कि गोची साव उस मूर्ति की शक्ल में अपने जीवन की सबसे कीमती चीज गुम कर बैठा है, और कोई गहरा सदमा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसी हालत में उसने कुछ दिन अनाथ बिंडू की समाधि पर तपस्या की। कई रातें जंगल की तन्हाई में गुजारी। सावगारी के बासी अंधेरी रातों के पुरहोर सन्नाटे में उसके रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते और कांप जाते। वो अनाथ बिंडू की आत्मा से अपनी भूल का प्रायश्चित करता रहा। मूर्ति का दरिया में गिरना और गुम हो जाना महज एक हादसा था, मगर गोची साव समझता था कि हादसा उसकी गलती का नतीजा है, और जब तक मूर्ति मिल नहीं जाती उसकी रूह इसी तरह तड़पती रहेगी। समाधि प्रायश्चित का चिल्ला काटकर जब वो सावगारी में वापस आया, बेहद अफसुर्दा और गमगीन था। उसके बेटे ने कहा, मूर्ति खो जाने में आपका कोई दोष नहीं, मगर आप तो उसकी खातर प्राण त्याग देने पर तुल गए हैं। गोची साव ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता ये बूढ़ी धरती कब तक मेरा बोझ उठाएगी। मैं कब मरूंगा और कब मेरी आत्मा को इस पिंजरे से रहा होगी, मगर यूँ लगता है कि मूर्ति के साथ मैं भी गुम हो गया हूँ। तुम सिर्फ मूर्ति को खो जाने को हादसा समझते हो, मगर हादसा उससे कहीं बड़ा और अलमनाक है। अगर तुम जान लो कि मेरे साथ क्या पेश आने वाला है, तो शायद उसके तस्वर ही से पागल हो जाओ। इस मूर्ति को नहीं, अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। बेटे ने बड़ी कोशिश की कि भेद की वह बात जान सके जिसे गोची साव इशारों में बयान कर रहा था, मगर बाप ने उसे कुछ नहीं बताया और अपना राज अपने साथ ले गया। गोची साव ने बहुत लंबी उम्र पाई। जब तक जीता रहा, मूर्ति को ढूंढता रहा। उसके जीवन के कई वर्ष ब्रह्मपुत्र के किनारों पर घूमने फिरने में बीत गए। उसका ख्याल था कि शायद किसी सैलाब में दरिया मूर्ति को किनारे पर उछाल दे और वो उसे दोबारा मिल जाए, मगर मूर्ति या तो वाकई किसी मगरमच्छ ने निगल ली या बहती हुई समुंदर के पेट में उतर गई थी। वो फिर ना मिल सकी। इस सदमे ने गोची साव से जीवन की सारी खुशियां छीन ली और वो मौत के बिस्तर से आ लगा। उसने मरने से पहले वसीयत की कि उसकी औलाद सावगारी को कभी वीरान न होने दे और नस्ल दर नस्ल यहाँ निर्वाण की तपस्या जारी रखे, क्योंकि इसी तरह वो निजात हासिल कर सकती और पाप के इस दाग को धो सकती है जो मूर्ति ज़ाया कर देने से गोची साव के दामन पर लग गया था। ये ताकीद भी की कि उसके मरने के बाद मूर्ति की तलाश जारी रहे। अगर साव खानदान को अपनी सारी दौलत के बदले में भी मूर्ति कहीं से मिल सके तो उसे सावगारी में जरूर वापस लाया जाए। ये कहानी बयान कर देने के बाद मंगल साव कहने लगा, गोची साव को स्वर्गवास हुए एक ज़माना बीत गया, मगर उसकी औलाद नस्ल दर नस्ल सावगारी में निर्वाण की तपस्या करती और गुमशुदा मूर्ति को ढूंढ रही है। उसमें सावगारी में साव खानदान का वारस और अपने जद्दे आला की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मूर्ति की तलाश में हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा स्वरूप साव ये फ़र्ज अदा करेगा
और जब तक मरने वाले की ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती ये सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा। हम बाप बेटा खुद इस मूर्ति की तलाश में हैं जिसे हासिल करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। बद्री साखा के लिए यह कहानी अगरचे बड़ी मायूस कुन और निराश कर देने वाली थी, मगर उसे विश्वास था कि मंगल साहु ने मूर्ति के ज़ाया हो जाने का जो वाक़या सुनाया वो दुरुस्त है, क्योंकि गुमगुशा मूर्ति को खोजने के जो खानदानी सबूत पेश किए गए वो नाकाबिले तरवीज थे। मंगल साहु ने यह इंकशाफ करके उसे मजीद हैरान कर दिया कि जब से पिटना की खुदाई से बरामद होने वाली बुद्ध मूर्ति का जिक्र सुना है उसी दिन से मैं उसकी तलाश में हूँ, क्योंकि गुमशुदा मूर्ति और बुद्ध आनंद बख्शू वाली मूर्ति में एक ही जौहर पहना है। भगवान बुद्ध की राख उन दोनों में से किसी भी मूर्ति को हासिल करने के लिए मैं अपने पूरी जायदाद कुर्बान कर सकता हूँ। बद्री साखा की सारी आशाएं कांच की तरह चकनाचूर हो गईं। साओ खानदान 3 सदियां कबल मूर्ति गुम कर चुका और उसकी जुस्तजू में सरगर्दा था, बल्कि मंगल साओ की पीढ़ी तक हर कोशिश में नाकाम रहा। साखा ने साओगारी का सफ़र इस उम्मीद पर किया था कि लिहासा की बुद्ध खानका की अमानत हासिल कर सकेगा, लेकिन यहाँ हालात कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर चुके थे। साओ खानदान 300 साल से नस्ल दर नस्ल गुमशुदा मूर्ति की तलाश को अपना आदर्श बना चुका और अब आनंद बख्शू वाली मूर्ति के खोज में लगा हुआ है। बद्री साख मूर्ति से मायूस होकर वापसी की तैयारियां करने लगा, मगर मंगल साहु ने एक अजीबोगरीब पेशकश करके उसे हैरान कर दिया।